and that of reactant with each substance in a definite physical state, and the amount being the represented by the coefficient in the balanced chemical equation. अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, इसकी एंथैल्पी निकालने की, तो and you have got this example I've given you. In this reaction, what is the HR of this reaction? So what will write HR of this is sum of the enthalpy of product minus sum of enthalpy of the reactant. Product क्या है इधर? कार्बन डाइऑक्साइड. कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? 4 into enthalpy of carbon dioxide plus 6 into enthalpy of water. ये total हो गया enthalpy of the product minus and 2 into enthalpy of ethane, which is a reactant, plus 7 into enthalpy of oxygen. अभी ये enthalpy of carbon dioxide is given, enthalpy of water is given, enthalpy of ethane is given, but enthalpy of oxygen is not given. हमको उसकी values डालनी. So 4 into enthalpy of carbon dioxide, enthalpy of carbon dioxide is 393.5 plus 6 into enthalpy of water. Water की enthalpy कितना है? 285 bracket 2 into enthalpy of ethane. Ethane की enthalpy 84.5 and 7 into oxygen, enthalpy of oxygen. Enthalpy of oxygen is 0 because it is an element. Enthalpy of any element in its standard state is 0. These are values डालो and you have got the answer minus 3119 kilojoule. This is the enthalpy of reaction. Which reaction? Which I have given here. इस reaction की enthalpy है. So we have calculated this by writing the formula and then. Okay. So ये हो गया. Now, what is exothermic reaction? A reaction in which heat is evolved is called as exothermic. Exothermic में delta H negative होती है, and some of the enthalpy of product is more than some of the enthalpy of product is less than the enthalpy of reactant. Product is more stable. HP is less than HR means enthalpy of the product is less than enthalpy of the reactant. तो product की enthalpy कम है इसलिए product stable. जिसकी enthalpy कम होती है वो stable होता है, जिसकी enthalpy ज्यादा होती है वो unstable होता है. Then what is endothermic reaction? A reaction in heat is absorbed is called endothermic reaction, and then delta H is positive and HP is more than HR. That means product is less stable than reactant. Then thermodynamic standard state. Enthalpy of any substance in a standard state is called standard state of enthalpy. Then thermochemical equation. Thermochemical equation क्या है? जिस equation में reactant and product का physical state लिखा था and कितना heat absorb हुआ और evolved हुआ इसके बारे में मालूमात रहती है. That is called as thermochemical equation. मैंने एग्जांपल दिया, पहला वाला इक्वेशन केमिकल इक्वेशन है और दूसरा वाला इक्वेशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन. फिर ये इक्वेशन को कैसा इंटरप्रेट करना, हाउ टू इंटरप्रेट, ये सब तुम लोग ने जवाब दिए थे मुझे कि डेल्टा एच नेगेटिव है क्योंकि देयरफॉर इट इज एक्सोथर्मिक. आपको फिजिकल स्टेट मालूम है कार्बन का, ऑक्सीजन का. देन इसमें 393 किलो जूल्स ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड when 1 mole of carbon dioxide is formed from its constituent atom. So this means then 393 kilojoules of heat is evolved when 1 mole of carbon dioxide is formed from its constituent element. This explanation दिया है. And then today we are going to see what is thermochemical equation. Types of thermochemical equation. Type of thermochemical equation. Okay.
There are different types of thermochemical equation. पहला है फॉर्मेशन इक्वेशन, दूसरा है कंबशन इक्वेशन, तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन, चौथा है डिसोसिएशन इक्वेशन। ऐसे बहुत हम लिख सकते हैं, but you have only these two in your syllabus: formation equation and combustion. Formation equation का मतलब you are writing the formation equation for any compound. You are writing formation equation for any compound. You tell me which compound का formation आपको लिखना है. Compound आप दोगे, मैं लिखूंगा. Formation equation, that means formation equation is an equation of formation of any compound in its standard state. Formation of thermochemical equation of formation of a compound in standard state. बोलो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन इक्वेशन लिखना है? आप कंपाउंड बोलो, मैं वो इक्वेशन लिखूं. कंपाउंड इज योर चॉइस. आपको कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन इक्वेशन लिखना है? बोलो. 47 लोग हैं, मुझे एक कंपाउंड का नाम बोलो जिसका फॉर्मेशन इक्वेशन लिखा है. एक कंपाउंड बोलो जिसका मैं फॉर्मेशन इक्वेशन लिखूंगा. बोलो. एनीवन, एनी कंपाउंड, एनी केमिकल कंपाउंड जिसको आपको फॉर्म करना है, जिसको आप बनाना है, एंड उसका मैं इक्वेशन लिखता हूं. हाँ, NaCl. किसी ने बोला मुझे फॉर्मेशन ऑफ NaCl चाहिए. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl बनाता. I'll write formation of chemical NaCl. Formation of sodium chloride. That means NaCl. Sorry. तो जो फॉर्म करना है उसको पहले लिखो. That means NaCl you want as a product. So NaCl salt. तो फॉर्मेशन में पहला प्रोडक्ट लिखो. ठीक है. अब इसमें कौन से एलिमेंट है? सोडियम क्लोराइड में कौन से एलिमेंट है? जरा आवाज बोलो ना, आवाज से बोलो. Which elements are there in NaCl?
Sodium and chloride. Sodium and chlorine, not chloride. Chloride is not an element. Chloride is an ion. Sodium and chlorine. ये दो elements है. So these are called constituent elements. जिससे compound बनता है उस वो particles को बोलते हैं constituent. तो sodium and elements. Sodium and chlorine. So you write the sodium and chlorine in the standard form. Standard form means form in which they exist. So sodium solid plus chlorine gas plus chlorine gas. Is it balanced? Is it balanced? ये बैलेंस है या नहीं बैलेंस है? No sir. किधर बैलेंस है? कौन सा किधर बैलेंस है? नहीं बैलेंस है. इधर दो क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन है. रिएक्टर में दो क्लोरीन है, सोडियम एक है, इधर सोडियम एक है. बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना पड़ेगा. तो बैलेंस कैसा करोगे? यू विल राइट हियर हाफ. Balancing by fraction is allowed in thermochemical equation. The half. और ये जब फॉर्म होगा this will be enthalpy of formation. जो भी रहेगा किलो. Okay? That will be enthalpy of formation. Anything? और कोई रिएक्शन चाहिए? फॉर्मेशन रिएक्शन? नो बोला सर. ये कौन है नो बोला? ये साइमा कौन है? Yes sir. हाँ, ये को क्या लिखा है? नो बोला सर मीन्स क्या? सर वो आप पूछे थे ना. हाँ, आप पूछे थे ना बैलेंस है क्या नहीं. अच्छा नहीं तो बोलो ना आवाज. मैं चैट देख नहीं सकता हूँ बेटा. अच्छा दूसरा और क्या चाहिए? कौन सा फॉर्मेशन चाहिए? कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन रिएक्शन चाहिए? बोलो. कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन चाहिए? नेम द कंपाउंड. आई राइट. मैं तुमको कंपाउंड का नाम बोलो, मैं बनाता हूँ रिएक्शन. आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ. कोई बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कोई बोलता है वाटर. ये दो ही तुमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड यही सब मालूम है. उसे और उससे बड़ा कंपाउंड नहीं मालूम. ठीक है. तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर. Al2SO4 thrice. फॉर्मेशन ऑफ वाटर. पहला जो उन्होंने बोला उनका तो काम लिखू करूं मैं पहला. तो पहला वाटर लिखो. वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट. व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ वाटर? स्टैंडर्ड स्टेट मींस स्टेट इन व्हिच जनरली एग्जिस्ट लिक्विड. ये वाटर सॉलिड फॉर्म में भी होता है, वाटर गैस फॉर्म में भी होता है, लेकिन लिक्विड इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. तो वाटर लिक्विड. व्हिच आर द टू एलिमेंट्स हियर? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जी जी. हाइड्रोजन दो है, इधर दो है. इधर ऑक्सीजन एक है, इधर दो है, तो इधर हाफ. फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, इसलिए मैं लिख रहा हूं -20. किसी ने पूछा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. पहला प्रोडक्ट लिखो. कौन से एलिमेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन. इसकी भी वैल्यू मुझे मालूम है
it is minus 393.5 kilojoules. तो ये 3 रिएक्शन। और कोई कंपाउंड बोलो। हाँ, एनी कंपाउंड अदर देन दिस ही। बहुत सिंपल कंपाउंड बोले थे तुम लोग ने, कोई डिफिकल्ट कंपाउंड बोलो। हाइड्रोजन परऑक्साइड किसी ने दिया है? हाइड्रोजन परऑक्साइड ये मरियम ने दी है, मरियम। और भी किसने दिया है वह? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का पहला हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्टेट क्या है? लिक्विड। कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका फॉर्मेशन, इसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम। नेक्स्ट, और कुछ है? फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अभी मैं दे रहा हूं, सुनो। फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में पहला प्रोडक्ट लिखते हैं। इतना ध्यान से सुनो बच्चे लोग, फॉर्मेशन रिएक्शन लिखने के लिए पहला प्रोडक्ट लिखते, फिर बाद में रिएक्टेंट लिखते। तो पहला प्रोडक्ट लिखने का, उसमें देखने के कौन से एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट को रिएक्टेंट में लिखने का, और भी उनके स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। दिस इज इथाइल लिक्विड, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। ऑक्सीजन कितने? 1 है। तो हाफ और इसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम, बट इट विल बी नेगेटिव। एनीथिंग एल्स? नहीं। तो कितने एग्जाम्पल हमने देखे? 5 एग्जाम्पल। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। We have written the reactions. इसने बोला है सोडियम कार्बोनेट। Somebody asked me, क्या डेल्टा H हमेशा नेगेटिव रहेगा? It can be negative, it can be positive. It can be negative or it can be positive. Right? It's not necessary it should be negative. It can be negative, it can be positive, both. अभी किसी ने बोला पोटेशियम क्रोमेट का रिएक्शन लिखो। फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। क्रोमेट का फॉर्मूला है K2CrO4। दिस इज पोटेशियम क्रोमेट। तो लिखो K2CrO। कितने एलिमेंट्स है? K, Cr और ऑक्सीजन। तो K सॉल्ट,
Cr solid, ऑक्सीजन के कितने 2 है, Cr कितने 1 है, ऑक्सीजन कितने 2 4 है, तो इधर 2 लिखेंगे तो 4 हो जाए, हो गया। इसका जो भी फॉर्मेशन होगा आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हर एक रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है and that is called standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation. So you have to write the definition of enthalpy of formation. So what is standard enthalpy of formation? These are all standard enthalpy of formation. Zero रहेगा तो standard. So what is standard enthalpy of formation? Standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation of a compound is defined as change in enthalpy that occurs when 1 mole of a pure compound in its standard state is formed from its constituent element in their standard state. Delta FHO is standard enthalpy of formation for symbol. And standard enthalpy of formation of compound is defined as change in enthalpy that occurs when 1 mole of a pure compound in its standard state is formed from its constituent element in the standard state. And जिस element से वो बनते हैं वो element भी standard form में चले. लेकिन when you're writing formation reaction, the product should be 1 mole. When you're writing formation, the product should be 1. जो आप बना रहे, that should be 1. See, everywhere you see the example, what I am forming, I have taken as 1 mole. And accordingly, I have balanced the reactant. अगर water equation को अगर balance करना है, तो I can multiply by 2, but I'll get 2 moles of water. Definition क्या बोलता है? 1 mole of water. Standard formation of enthalpy क्या बोलता है? For formation of 1 mole of a compound. So what is formed? That should be 1 mole.
if you are writing formation reaction. Okay, चलो, तो ये है फॉर्मेशन का हो गया. अब दूसरा देखते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी of combustion. It is denoted as delta CHO. Standard enthalpy of combustion. What is combustion? What do you mean by combustion? Yes, anyone? Combustion means burning. ये कौन बोल रही है? बोलती नहीं, लिखती बहुत है. Burning. बंद करने के लिए क्या चाहिए? कोई चीज बंद कही होगी, कब जलेगी? जब वहां ऑक्सीजन होगा. तो सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन, you get oxide, and this is called combustion reaction. यानी जिस सब्सटेंस का कंबशन रिएक्शन में चाहिए वो सब्सटेंस रिएक्टेंट में होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. तो लेट अस सी कंबशन. कौन सा किसका कंबशन रिएक्शन लिखूं बच्चे लोग? टेल मी. कंबशन, आवाज नहीं आ रहा है. कंबशन रिएक्शन ऑफ कंबशन रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन. ओके, किसने लिया? कंबशन रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन. Can it give me what is the formula of butane? मुझे नहीं मालूम ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है. C4H10. इसका कंबशन लिखना. तो कंबशन में रिएक्टेंट को पहला लिखेंगे उल्टा, प्लस O2 एरो. अब देखो ये C4H10 है ना, मैं C4H4 लिखा. कितने क्या क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन. 4 कार्बन है तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे. प्लस हाइड्रोजन है तो 5 वाटर बनेंगे. जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर. यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. देखो 10 हाइड्रोजन इधर है, 10 हाइड्रोजन वाटर में भी, और लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करने का. अभी तो इधर कितने ऑक्सीजन है? 4 to the 8 and 5. 8 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में है और 5 ऑक्सीजन वाटर में है. तो 8 + 5 13. तो इधर क्या करो, इधर 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26. 26 आपको 13 ही चाहिए तो डिवाइड बाय 2. 13/2. 13 करेंगे तो 26 मिले, डिवाइड बाय 2 13 होगा. हाँ, इसका भी फिजिकल स्टेट लिखना पड़ेगा. G, इसका फिजिकल स्टेट G, इसका फिजिकल स्टेट L, और इसमें जो हीट निकलेगी, हाँ, दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव. कंबशन विल बी ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज कंबशन में हीट निकलती है. इट इज एक्सोथर्मिक, so it is always negative. Formation is either exothermic or it is endothermic. So formation में either positive हो सकती है, negative हो सकती है, लेकिन combustion में it is always negative. So it was combustion of butane. Any other example you want? Combustion of methane. ये तो मीथेन जैसा ही है.
दूसरा कोई बोलो। कंबशन ऑफ, आवाज बोलो, आवाज से बोलो। कंबशन ऑफ एनीथिंग, अरे बोला ना। कंबशन ऑफ एनी कंपाउंड, यू नेम अ कंपाउंड। मैं मीथेन वाला नहीं लिखूंगा बिकॉज मैं ये ब्यूटेन लिखा वैसा ईथेन। अच्छा, एसिटिक एसिड, सिक्स ने लिखा एसिटिक एसिड, कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। तो पहला रिएक्टेंट लिखना था, कंबशन में पहला रिएक्टेंट। एसिडिक गैस का फिजिकल स्टेट स्टैंडर्ड है प्लस O। कितने कार्बन है? एक और दो, दो कार्बन तो दो कार्बन डाइऑक्साइड। जी। वाटर कितने हैं? सॉरी, हाइड्रोजन कितने? चार है, तीन और एक, चार हाइड्रोजन है तो दो वाटर। ये L होगा। अब ऑक्सीजन देखो प्रोडक्ट में कितने हैं? दो, 2 to the 4 and 2 6, 6 ऑक्सीजन आर इन द प्रोडक्ट। दो तो इसमें, ये एक और ये दो है, और चार चाहिए। ये 6 ऑक्सीजन इधर है प्रोडक्ट में, और तो 6 रिएक्टेंट में चाहिए, दो दो ऑक्सीजन एसिटिक एसिड में, और चार चाहिए तो दो। एंड इसका जो भी रिएक्शन होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इट विल बी नेगेटिव। So this was combustion reaction, combustion of butane, combustion of acetic acid. और कोई चाहिए एग्जाम्पल? और चाहिए? कुल बोलो। किसी ने बोला है कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही आएगा क्या? चलो तुम उसका जवाब भी देता हूं मैं। किसी ने पूछा कंबशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तुम्हारा वो जवाब का, उस सवाल का जवाब अभी मिलता है, कंबशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, दिस इज द फॉर्मूला। इसका कंबशन रिएक्शन CH2 फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है, प्लस ऑक्सीजन। क्या है? कार्बन है और सल्फर है। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड। जी। दो सल्फर है तो दो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। एक कार्बन है तो एक कार्बन। अब सवाल जवाब मिला। हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, जो एलिमेंट है उसी का ऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा। अब ये कंपाउंड में कार्बन और सल्फर है तो कार्बन का कार्बन डाइसल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड। अभी बैलेंस करो ऑक्सीजन, दो और चार, 6 हो गए, 6 हो गए तो इधर 3 हो गए, एंड दिस विल बी combustion, it will be negative. I hope you got your answer. यस सर। ओके, समझ में आया? चलिए, अब इसमें कंबशन में हीट निकलती, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑल स्टैंडर्ड है, मैं स्टैंडर्ड नहीं लिखा हूं। स्टैंडर्ड का मतलब इधर 0 रहेगा। ओके, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन? Definition of
standard enthalpy of combustion. It is HCO. Standard enthalpy of combustion of a substance is defined as change in enthalpy that occurs when 1 mole of a substance in its standard state is completely oxidized. Is completely oxidized. Okay? It will be always negative. The standard enthalpy of combustion is defined as change in enthalpy that occurs when 1 mole of substance in its standard state is completely oxidized. जिसका combustion reaction दिखना है और that should be always 1. Okay. तो ये था, ये तो बाकी आपके सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए वो मैं नहीं कर सकता हूँ. Okay, that is neutralization and dissociation. Now, next I'm going to do bond enthalpy. Bond enthalpy. लेकिन पहले bond enthalpy की जगह पर I think I should do numerical based on what I have taught. तो मैं उस पर जा रहा हूँ पहले. Numerical based on thermochemical equations. Numerical based on thermochemical equations. On thermochemical equation. पहला, calculate standard enthalpy of reaction Fe2O3 solid plus 3 carbon monoxide to Fe
plus 3 carbon dioxide. From the following data. Delta H F0 of Fe2O3 is equal to minus 84.2 kilojoules per mole. HFO of carbon monoxide is minus 110.5 kilojoules per mole. And enthalpy HFO of carbon dioxide is equal to minus 393.5 kilojoules per. ये सम है आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी दिया है, वेरी गुड। अब इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज गिवन and you are given enthalpy of Fe2O3, you are given enthalpy of carbon monoxide, and you are given enthalpy of कार्बन डाइऑक्साइड और इस रिएक्शन के ये निकाल। तो ये कैसे कर सकते हैं भाई साहब? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? Enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Enthalpy of product minus enthalpy of reactant. So solution. Standard enthalpy of reaction is equal to summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reaction. So enthalpy of reaction is equal to product कौन सी है इधर? Fe 2 into enthalpy of Fe plus 3 into enthalpy of carbon dioxide, bracket close, reactant enthalpy of Fe2O3 plus 3 into enthalpy of carbon dioxide, carbon monoxide. अब इसकी वैल्यूज डालो बच्चे लोग। Fe की एंथैल्पी क्या है? Fe की एंथैल्पी कितनी है? बोलेंगे नहीं दी गई है, नहीं दी गई है, लेकिन वो आपको होना चाहिए मालूम, इट इज 0. Why? Because Fe is an element. Enthalpy of an element in its standard state is 0. Fe is an element. It is not a compound. Enthalpy of an element in standard state is 0. So 2 into 0 plus 3 into carbon dioxide. Enthalpy of carbon dioxide कितना दिया है? minus 393.5 bracket close. Fe2O3 का एंथैल्पी दिया है minus 824.2 plus 3 into enthalpy of carbon monoxide 110
0.5. So this is equal to 3 pies are 15, 3 threes are 9 and 1, 10, 1 carry, 3 nines are 27 and 1, 28, 2 carry, 3 threes are 9 and 2, 11. So minus इसका निकालो -2 24.2 प्लस कितना आएगा 3 pies are 15 1 3 ones are 3 3 ones are 3 so this will be minus again minus because plus into minus is minus. It will be what? Minus 11180.5 माइनस दोनों को ऐड करो दोनों माइनस है 331.5 एंड 824.2 दोनों माइनस है तो दोनों को ऐड करेंगे 7 5 5 11 so it is minus 55.7 दोनों को ओपन करो ये प्लस में आएगा एंड देन डिफरेंस देखो दोनों का डिफरेंस देखो 1180 बड़ा है एंड 1155 छोटा है 55.7 यस सो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 15 minus 7 8 9 minus 5 4 7 minus 5 2 so sign of the greater number minus 24.8 kilojoules. So this is enthalpy of reaction. Okay, so ये था पहला सम मैंने जो किया. दूसरा ऑप्शन अभी इसमें क्या है बच्चे लोग लिसन टू मी वंस एक मिनट जरा ध्यान से सुनो इधर ध्यान दे दो पहले आपको ये इक्वेशन बनाने का फिर रिएक्शन की रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब डालने का और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का कभी कभी क्या होगा ये डेल्टा एच की वैल्यू दी रहेगी और इसमें से कोई एक मिसिंग रहेगा उसकी वैल्यू निकाल तो ऐसा भी होगा आपको हीट ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का एंथैल्पी पूछा रहेगा आई एम गिविंग यू दैट टाइप ऑफ सम so second sum I'm giving you now calculate the standard heat of formation of ethane of C2H6 from the following data. Two CS C2H6 plus O2
4 CO2 plus 6 water. Delta H 0 is equal to minus 3119 kilojoules. What else is given? Delta HFO of carbon dioxide, formation of water, carbon dioxide minus 393.5, formation of water minus 285.8 kilojoules. और आपको क्या पूछा है? फॉर्मेशन ऑफ ethane. And what is asked? You are doing the solution now. You are asked delta H formation of ethane. इसका वैल्यू आपको पूछा है. इक्वेशन दिया आपको और उस इक्वेशन का हीट ऑफ रिएक्शन भी दिया. तो इसके हिसाब से क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant. इसका वैल्यू दिया है how much? 3119. ये क्या है? प्रोडक्ट क्या है? 4 into enthalpy of formation of carbon dioxide plus 6 into enthalpy of formation of water minus जाने का नाम भी नहीं ले रहा है. कौन? ये उन लोग का जैनी नहीं जा भी नहीं रहा है. तो मेरे लिए Wait. 2 into enthalpy of formation of ethane plus 7 into enthalpy of formation of hydrogen or oxygen. अभी जो चीज मालूम है वो सब्स्टिट्यूट करो, जो नहीं मालूम वो निकाल. ये 3119 बीच में आता मालूम. minus 3119 4 into minus 393.5 plus 6 into minus 285.8 2 into formation of ethane plus 7 into 0 because oxygen is an element. Oxygen is an element. So 3119 4 by the 20
4 3s are 12 and 2 14. 4 9s are 36 and 2 38. 3 carry. 4 3s are 12 and 3 15. But this will be negative. Then this also minus 6 8 the 48. 4 carry. 6 5 the 30 and 4 34. 3 carry. 6 8 the 48 and 3 51. 5 carry. 6 2 the 12 and 5 70. Minus 2 times enthalpy of C2H6. ये तो 0 है, उसका कोई वैल्यू. So 3119 इन दोनों को ऐड करो because both are negative. Eight, 8, 9, 12, 3 minus 3298.8 minus 2 times delta HF of ethane. So this will be 2 times HF ethane equal to minus 3298.8 and that will come here 3119. इन दोनों को सेपरेट कर सब ये करो डिफरेंस देखो दोनों का 3119 8 8 minus 9 18 minus 9 9 8 minus 1 7 7 1 179.8 sign of the brick 179.8 kilojoules because this is 2 times. Therefore, enthalpy of formation of ethane will be equal to minus 179.8 divided by 2. That will be 2 8s are 16, 2 9s are 18, with minus 89.6 kilojoules. $89.6 kilojoules. Okay. समझ में आया सब तो समझ Yes, में आया sir. कि नहीं है हाँ चलो अभी Yes, sir. अभी दूसरे थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड how much heat is evolved when 12 gram of carbon monoxide reacts with NO2 according to the following reaction.
4 plus 2NO2 give you 4 carbon dioxide plus N2 delta H is equal to minus 119. Cool. How much heat is he want when 12 gram of carbon monoxide here? ये इक्वेशन जो दिया है ना रिएक्शन उससे बात करो. You talk with that reaction and ask, what are you telling me? What information you are giving me? Or and if you can talk and if you can listen to the reply of that reaction, you can find the solution for this numerical. What is that reaction telling you? ये रिएक्शन आपको क्या बोल रहा है? अरे कुछ तो बोलो. ये रिएक्शन बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको. एनीवन? अरे एक इंफॉर्मेशन तो बोलो. सर एंथैल्पी दिया है रिएक्शन का कितना है? -1198 यानी क्या किया है वो? हीट इवॉल्व हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हो गया? हीट इवॉल्व कितना? 1198 किलो जूल्स ऑफ हीट इज इवॉल्व. कब? कब? इतना हीट इवॉल्व हुआ, लेकिन कब? हाँ, 119 किलो जूल्स ऑफ हीट इज इवॉल्व. व्हेन? 4 molecules of CO is reacted. What you said? 4 molecule नहीं, 4 mole. 4 mole of carbon monoxide reacts with nitrogen dioxide. Very good. शुरुआत की है, कोशिश की है, you are successful. Let's see what this reaction is telling. When 4 mole of carbon monoxide reacts with NO2, 1198 kilojoules of heat is evolved. बस, वेरी गुड. अब ये मोल को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ग्राम दिया है. कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट हमें ग्राम में दिया है और हमने रिएक्शन ने हमको किस में दिया? मोल में दिया. तो ये 4 मोल को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. 4 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड is equal to 4 multiplied by molecular weight of carbon monoxide. तो उसका बेसिक समझाता हूं मैं. हे बाबा, ये बिल्ला कहां से आया? जाने का नाम ही नहीं ले रहा है. जा रहा है. बिल्कुल नया है. बंद करो, दरवाजा बंद करें तो भाई भाई जा ही नहीं रहा है वो. तो अपना गलत कर रहा है. रहेंगे बाबा, वो उससे आने से चेंज होगा कुछ. हाँ, ठीक है. जा ही नहीं रहा है. क्या ढूंढता है? तेरे को शेक वेट में रहने दे बाबा, मैं पढ़ा रहा हूँ. 1 mole of carbon monoxide means 12 plus 16, that is equal to 28 gram. So 4 mole
of carbon monoxide means 4 into 28. That means 4 is a 32. 4 is a 32. 3, 4, 4 to the 8 and 312 gram of carbon monoxide. So, अब क्या मिलता है अभी? When 112 gram of carbon monoxide, देखो अब मैंने कैसे चेंज किया? When 112 gram of carbon monoxide reacts with NO2, 1198 kilojoules of heat is evolved. Therefore, when 12 gram of carbon monoxide reacts with NO2, how many moles of heat evolved? And that is 1198 multiplied by 12 upon 112. And it comes to, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, two fives are 2 6s are 2 6, 2 3s are 2 28s are 2 14s are 2 5s are 2 9s are 18, 2 9s are 18, 2 9s are 18. It is 599 into 3 upon 14. And अगर ये कैलकुलेट करो, it comes to 128.4 kilojoules. See? So when 12 grams of carbon monoxide reacts with NO2, 128.4 kilojoules of heat is evolved. Okay? So ये हो गया, ये सम था, थर्ड सम. सर वो माइनस का साइन आएगा ना आंसर में? नहीं, मैं स्टार्टिंग से कहा माइनस लिया, देखो सर वो क्यों नहीं लेना है? क्यों, तो वर्ड क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया, हीट इवॉल्व. मैंने पहले बोला था जब हीट इवॉल्व है या हीट एब्जॉर्ब है, आपको कोई साइन नहीं देने. ओके सर. If you say heat evolved minus 128, heat evolved or minus heat evolved का मतलब नेगेटिव. तो जब Yes, हीट sir. इवॉल्व या हीट एब्जॉर्ब का वर्डिंग होता है, साइन को लेना ही नहीं. ओके सर. हाँ, या फिश दे, फिश फ्राई वाला. समझ आया ना? हाँ सर. ओके, और एक सम लेता हूं. ये फोर्थ सम अभी है ना.
Standard enthalpy of formation of ethane is minus 84.7 kilojoules per mole. Calculate the enthalpy of enthalpy change for formation of 0.1 kg of ethane. Okay. अब देखो जरा, standard enthalpy of formation of ethane is minus 84.7 kilojoules per mole. इसका मीनिंग क्या? पहला ही लाइन का मीनिंग मुझे बताओ, आंसर मिल जाएगा. Standard enthalpy of formation of ethane is minus 84.7 kilojoule per mole. What is the meaning of this sentence? Delta बोलो. FH0 of delta FH0 of ethane is minus 84.7 kilojoules. And the delta H of Delta FH0 किसका किसका ethane. ethane. ये पहले इसका मतलब ये ऐसा है. Standard enthalpy of formation of ethane is minus 84.7 kilojoules per mole. इसका मीनिंग, when 1 mole of ethane is formed. देखो मैं पर मोल पर मैं बहुत स्ट्रेस मारता था. When 1 mole of ethane is formed, delta HF0 is equal to minus 84.7 kilojoules. Okay, what is 1 mole of ethane? ग्राम में ले लो, because हमको weight. 1 mole of ethane is what? Molecular weight of ethane. 1 mole of any substance means molecular weight of that substance. What is 1 mole of ethane? 2 into 12 30. plus 6 into 1, that is equal to 30 gram. 1 mole of ethane. हमको कितना गिवन? 0.1 kg of ethane हमको दिया है. That is equal to 0.1 into 1000. That is equal to 100 gram. Yes. तो अभी हम क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट को मैं कैसा लिखता हूं देखो. When 30 gram of ethane is formed, delta HF0 is equal to minus 84.7 kilojoules. मैं 1 मोल की तरह 30 ग्राम डाला. Therefore, when 100 gram of ethane is formed, delta HF0 is equal to
minus 84.7 multiply by 100 divided by 30 0 0 कट कितना आएगा 3 का टेबल जाएगा minus 847 upon 3 3 2s are 12 3 2s are 6 1 carry 3 4s are 12 2 carry 3 9s are 27 minus 249 minus 2 3 2s are 6 3 4s are 12 minus 249 सर 24 आए हाँ 3 8 are 24 हाँ 3 8s are 24 सर 286 करके आएगा क्या 286 करके आएगा आंसर 286 कैसा सर 3 में जाएगा ना 3 2s are 6 3 2s are 6 2 2 कैरी carry 3 24 8s are 24 हाँ हाँ सर 3 2s are 3 2s are हाँ फिर 1 बचा 3 10 रखे फिर देंगे 9 जा 3 3 जगह 3 हाँ सर 3 times तो ये आंसर आपका अब ये माइनस में लिया मैंने क्यों हमको एंथैल्पी पूछा है तो एंथैल्पी पूछा है तो एंथैल्पी रखा हूं हीट इवॉल्व और हीट एब्सॉर्ब ये तो मैं साइन नहीं लेता जो एंथैल्पी पूछा है तो एंथैल्पी से ही जो एंथैल्पी का साइन है उसी को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा राइट हो गया अब एक बहुत सिंपल सम देता हूं मैं बहुत ही सिंपल सम है सम नंबर 5 कैलकुलेट the heat of formation of 0.25 moles of water given that H2G plus half O2G equal to H2OL delta H is equal to minus 300 kilojoules. क्या आएगा आंसर अब वापस इक्वेशन से बात करो इक्वेशन क्या बोलता है delta H is minus 300 when 1 mole of water is formed. When 1 mole of water is formed, delta H is minus 300. हमको कितने मोल ऑफ वाटर के लिए निकालना है 0.25. So what is the solution? When 1 mole of water is formed, delta H is equal to minus 300. ये इक्वेशन बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा हूं इक्वेशन से बात किया मैंने इक्वेशन ने जवाब दे दिया therefore 0.25 mole of water is formed delta H is equal to
minus 300 into 0.25 upon 1. So that is equal to minus 75. Any number multiplied by 0.25 become 1/4. So 300 का 1/4 is 70. हो गया. तो 5 सम की हमने थर्मोकेमिकल्स. अभी नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट बॉन्ड एंड थर्म. एंड उसके ऊपर भी सम्स. अभी जो भी पार्ट आएगा सम्स वाले ही है, सब हर एक चीज सम्स वाला. तो जितना थ्योरी करूंगा वो नेक्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग बॉन्ड एंड थर्म, और इसके ऊपर सम. उसके बाद मैं करूंगा हेस लॉ पर भी सम. उसके बाद करूंगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके ऊपर भी सम. लेकिन थियरी बहुत है इसमें. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही पार्ट फिनिश. उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाए. So okay, we'll see next time. Sufficient for today. आज के लिए हो गया.